In this video, we will solve exercise 6.2. We will start with question number 1. Sporting figure is given here and the question is find the values of x and y. Here we are given two lines AB and CD. This one is a transversal. Two angles are also given, 50 degree and 130 degree. Now names of two more angles are x and y. Question is find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. It means firstly we will find the values of x and y. पहले हम x और y की values find करेंगे. After that we will prove AB is parallel to CD. वो हमें prove करना है यहाँ पे. Now how to prove? It's very simple. We can see this one is a line like this. If this one is a line, sum of these two angles will be, this one is a straight angle, so इन दोनों angles का sum होगा 180 degree. Linear pair लिखेंगे इसको like this. This one is a line, ये एक और line, so ये 50 degree और ये x. This one is 50 degree, this one is x. So sum of these two angles will be 180 degree. Here, proof. Here 50 degree plus x. This one is 50 degree, this one is x. Equal to 180 degree. Reason? Linear pair. Then x will be, now 50 plus क्या है? अगर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखूंगा -50 डिग्री. 180 minus 50. 180 minus 50 is 130 degree. हमने एक्सपांड किया. Again, also, ये आप देखेंगे, this one is cross. ये क्रॉस बन रहा है. And you know, क्रॉस में ये दोनों एंगल्स, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं. Why? Because these are vertically opposite angles. We know vertically opposite angles are always equal. हम लिखेंगे y equal to 130 degree. Reason? Vertically opposite angles. Now, what is the question? Question is find the values of x and y. हमने find की x और y की values and then show that AB is parallel to CD. अब हमें ये prove करना है कि AB और CD parallel हैं. We have discussed different kinds of angles associated with the parallel lines. जिसको नहीं पता है वो देख सकते हैं हमारी वीडियो. उस वीडियो की हेडिंग ही यही होगी, parallel lines and angles associated with them. तो आपको जरूर देखनी है इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. We have two lines. Suppose these are two lines. If these lines are parallel, ये ध्यान रखना है. मैं चलिए लाइन की शेप दे देता हूँ. This one is transversal. इन लाइंस के बीच जो ये 1, 2, 3, 4 ये जो 4 एंगल्स बनेंगे, इन 4 एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. इनमें दिस वन इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड एक एंगल, ट्रांसवर्सल के राइट साइड एक एंगल जो हमें z की शेप देते हैं. अब z उल्टा हो या सीधा हो, इट मेक्स नो डिफरेंस. इन एंगल्स को बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आपको याद रखना है, इफ two lines are parallel then alternate interior angles are equal. अगर lines parallel हों तो alternate interior angles equal होते हैं. इसी का मैं कन्वर्स कह सकता हूँ, if alternate interior angles are equal. अगर alternate interior angles equal होते हैं तो lines parallel होंगे. ये देख सकते हैं आप. This one is z type, z type. So x and y, x, y. आप देखेंगे x and y are equal. Here x and y are equal. अब ये दोनों तो इक्वल हैं, बट these are alternate interior angles. These two are alternate interior angles. अभी हमने डिस्कस किया, if alternate interior angles are equal, then we can say lines are parallel. Therefore, AB is parallel to CD. This one is question number 1. Now, we will solve question number 2 also.
क्वेश्चन नंबर 2. Again we are given a supporting figure. One line, then second line and third line. We have three different lines here. AB, then CD and EF. This one is a transversal. Name of transversal is not given in the question. जरूरत पड़े तो हम नाम खुद भी रख सकते हैं. If AB is parallel to CD, given AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. This one is given. यहाँ कॉमन डालेंगे and the ratio of y and z is given, and the ratio is 3:7. Now this angle is x according to question. This one is y and this one is z. A ratio of y and z is given. Question is to find the value of x. We will find the value of x. अब आप देखेंगे AB is parallel to CD. AB और CD parallel है. Then CD is parallel to EF. CD और EF parallel है. See, first line is parallel to second line is parallel to third line. इसका मतलब ये तीनों lines अपर में parallel है. अगर एक line दूसरी के parallel, दूसरी तीसरी के parallel, so we can say all the three lines are parallel. Solution. Since AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, therefore AB is parallel to CD is parallel to EF, means all the three lines are parallel. Now a ratio of two angles is given. Let y equal to, जनरली हम जब रेशियो गिवन होती है हम x में सपोज कर लेते हैं 3x और 7x, बट हियर वी विल नॉट सपोज इन x बिकॉज नेम ऑफ एंगल इज x. तो यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा y इक्वल टू 3a रख लें, 3b रख लें, 3c रख लें, मैंने रख लिया 3k एंड z इक्वल टू 7k. रेशियो ऑफ y एंड z इज गिवन 3 और 7. इसको मैंने 3k सपोज किया, इसको मैंने 7k सपोज किया. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन हियर? We will see this one is z. If this one is z, 1, 2, 3, these three lines are parallel here. तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे. We have to find the value of x. See, this one is z. मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया. इस एंगल को आप देखेंगे स्ट्रेट एंगल, ये एंगल 180 डिग्री होगा. इस एंगल के अगर मैं दो पार्ट्स कर देता हूं तो दोनों पार्ट्स का सम भी 180 डिग्री होगा. दिस पार्ट इज सपोज 1, दिस पार्ट इज सपोज z. हम लिख सकते हैं ऐसा. या फिर अगर आपको ये पार्ट अभी यूज नहीं करना है, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है, तो हम वही यूज करके भी चल लेंगे. दिस वन इज 1. अगर आप इसको 1 नहीं रखना चाहते, आप इस एंगल को 1 सपोज कर लें. अब इसको 1 सपोज करने से क्या होगा, यू कैन सी ये z शेप दे रहा है. दीज लाइन्स आर पैरेलल. जब लाइन्स पैरेलल हैं तो z टाइप जो एंगल्स होते हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये भी हमने डिस्कस किया. इन दोनों एंगल्स को अगर मैं बोलूं ये z बना रहे हैं, तो 1 और z ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. मैं लिखूंगा सिंस CD इज पैरेलल टू EF. ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैरेलल लाइंस में होगा. CD इज पैरेलल टू EF, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल Z. एंगल 1 इक्वल टू एंगल Z. दीज आर
alternate interior angles. Let it be equation number 1. Now एक और कॉन्सेप्ट ये भी हमने डिस्कस किया एंगल्स एसोसिएटेड विद पैरेलल लाइंस के वीडियो में. These two lines are parallel. आप ये ड्रॉ करते रहेंगे अपने नॉलेज के लिए. दिस वन इज ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल में ये चारों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, बट सॉरी ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं. इन इंटीरियर एंगल्स में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल के राइट साइड, इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बट व्हेन टू एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सपोज मैं दो एंगल्स लेता हूँ, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है. फॉर एग्जाम्पल दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. आप ये देखेंगे ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड जो दो एंगल्स हैं इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. x प्लस y इक्वल टू, अब x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई विल बी इक्वल टू z. रीजन क्या देंगे आप? इट्स रीजन इज, ये नोट कर लेंगे अपने नॉलेज के लिए आप. Interior angles on the same side of transversal. These are interior angles on the same side of transversal. इनका सम होता है 180 डिग्री. This one is equation number 2. एंगल 1 और z इनको इक्वल प्रूव किया. 1 is equal to z. Then x और y का सम हमने 180 डिग्री प्रूव किया. Now y प्लस 1 अगर मैं ये देखता हूँ, ये लाइन, ये एंगल 180 डिग्री, इसी लाइन पे दो एंगल्स y प्लस वाई, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल है तो मैं इसी के साथ अगर लिख लूँ, जैसे हमने 1 इक्वल टू जेड प्रूव किया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं. मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन देंगे लीनियर पेयर. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3. फर्स्टली 1 और z को इक्वल प्रूव किया. x प्लस वाई का सम 180 डिग्री, y प्लस 1 180 डिग्री. नाउ आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे. वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, right hand sides of both the equations are same, that is 180 degree. So we can equate left hand side also. लेफ्ट हैंड साइड इज x प्लस वाई. यहां से लेफ्ट हैंड साइड है 1. अगर इनके साथ नहीं लिखा है तो लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एंगल 1 प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई. नाउ y दोनों साइड्स है इक्वेशन में, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं. आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1, एंगल x इक्वल टू एंगल 1. दिस वन इज सपोज इक्वेशन नंबर 4. नाउ हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने देखा x और 1 इक्वल हो गए. हमने अभी किया था x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज किस किस की हैं? 3y की, यहाँ पे y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी. y 3 के था, z हमारे पास 7 के था. आप देख सकते हैं अगर x प्लस वाई हमारे पास कितने डिग्री है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ, इसको इक्वेशन का नाम ना भी देके आई कैन से x इक्वल टू z. 1 की जगह मैंने z लिखा. वाई? बिकॉज 1 एंड z आर आल्सो इक्वल. रीजन दूंगा इक्वेशन 1, x इक्वल टू एंगल z. 1 की जगह मैंने सिंपली z लिख दिया. नाउ इक्वेशन 2 हमें क्या कह रही है? फ्रॉम
इक्वेशन 2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा हो सकता है। ओके, देन x प्लस वाई, अब y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, y हमारा किस एंगल के बराबर है, आपने देखा यहाँ पे हमने यहाँ प्रूव किया x इक्वल टू z, तो मैं x की जगह यहाँ z लिख रहा हूँ, x की जगह z लिखा प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। बड़े ध्यान से देखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 3 था, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें आप। x प्लस वाई इज 180 डिग्री, x की जगह मैंने फोर्थ इक्वेशन यूज की, z लिखा। नाउ z इज इक्वल टू, z कितना है 7k प्लस y कितना है हमारे पास 3k इक्वल टू 180, 7k प्लस 3k इज 10k इक्वल टू 180, k विल बी 180 अपॉन 10, तो k हमारे पास आ रहा है 18 डिग्री। k हमने निकाला, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है k के साथ, हमें फाइंड क्या करना था x। आप देख सकते हैं k अगर 18 है, आपने देखा था z कितना होगा, therefore z इक्वल टू, नाउ k इज 18, z है 7k, so 7 multiply k is 18, 126 डिग्री, हमने z निकाला। नाउ z किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4, x के बराबर। अगर z इतना है तो x भी कितना होगा 126 डिग्री। यू कैन से यूजिंग इक्वेशन 4। सो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा है, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। फॉर एग्जांपल मैंने बड़े लंबे स्टेप्स लेके ये प्रूव किया कि x इक्वल टू जेड, लेकिन अगर आप इतना लंबा लेके यहाँ पे नहीं पहुँचना चाहते, आप x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिखें, आप x प्लस वाई के बाद आप x प्लस जेड, सॉरी x प्लस वाई के बाद आप सिंपली, अगर इस क्वेश्चन को बड़े शॉर्टकट में आपने करना है, आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ बड़े सिंपली अगर आप इन दो लाइंस को देखते हैं, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को, तो x और z, ये z बना रहे हैं, इट मीन्स x और z इक्वल है। आप इस स्टेप के बाद बड़े सिंपली लिख सकते हैं x की जगह z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। जब z प्लस वाई आपके पास 180 डिग्री प्रूव हो जाएगा, वाई बिकॉज x इक्वल टू z, तो z प्लस वाई में आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, आप z की जगह 7k लिखेंगे, y की जगह आप 3k लिखेंगे, यहां से भी आपके पास 10k इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और k की वैल्यू आपके पास यहां से भी 18 आ जाएगी। जब k की वैल्यू आपके पास आ जाती है, देन यू कैन कैलकुलेट z लाइक दिस, जैसा भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। और जब z आपके पास आ जाएगा, आप z इक्वल टू x लेके x भी फाइंड कर सकते हैं। इतने स्टेप्स अगर आपको नहीं भी लेने, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस एंड वी कैन यूज एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। आपको बिल्कुल क्रैम करके नहीं चलना है कि यही एक ऑप्शन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।